हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पाथ आई एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत। वेल, इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडल आंसर एक्सप्लेनेशन। पाथ टेस्ट सीरीज जो हमारे यहाँ चल रही है, मेंस की टेस्ट सीरीज 2024 को टारगेट करते हुए, इसमें 2 मार्च को हमारा टेस्ट नंबर 3 ऑर्गेनाइज हुआ। एंड इन दिस टेस्ट नंबर 3 वी हैव द इंडियन हिस्ट्री एंड द सेकंड पार्ट वाज द CG history. Okay, so we will discuss the CG history model answer, how to write the better answer, how to improve your writing skill. Okay, what should be the better format, better structure to write any answer according to the different marking systems. Okay, whether it is 2 marks, 4 marks, 8 marks or 15 marks. Okay, so let us discuss this one by one as per the tests are organized. Okay, and both mediums should get benefited. इस उद्देश्य से हम लोग हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों सेपरेट वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं इन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब ऑल्सो एंड इन योर ऐप ऑल्सो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। इट इज द टेस्ट नंबर 3, 2nd of March 2025. Okay, and we will discuss the CG history portion, which was the part 2 in this test. Of course, this is the part 2 and section 1, this it means it is of 2 marks. So let us discuss question number 1. Give information about the subject matter of the cave paintings of Chitwa Dongri. Okay, this is very important topic as per the exam point of view. CGPSC के हिसाब से बात करें तो चितवा डोंगरी के बारे में प्रीलिम्स में भी पूछता ही है और मेंस में भी यहाँ पर पूछा जाने की संभावना है। ओके, सो because this is of 2 marks, so at least we have to write the 4 facts in this answer. So mainly अगर देखा जाए तो correct format of answer for 2 marks question is write in bullet points. Okay, आप डायरेक्टली बुलेट पॉइंट्स बनाइए और डायरेक्टली फैक्ट देना स्टार्ट करिए। क्लियर? सो 27 rock paintings have been found in 3 caves of the megalithic site Chitwa Dongri. Okay, which are of ochre color and the subject matter of this rock paintings is as follows. Okay, देखिए क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए ही सबसे पहला लाइन जो आपने लिखा, उस फर्स्ट लाइन में ही आपने बेसिक तौर पे देखा जाए तो 1, 2 और 3 ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने यहीं पर दे दिया दैट दिस चितवा डोंगरी इज रिलेटेड टू मेगालिथिक साइट। 3 केव्स जिसमें हमको ये एविडेंसेस मिल रहे हैं। टोटल हमारे पास 27 रॉक पेंटिंग्स हैं, ये आपने यहां पर बता दिया। नाउ we have the 4 points. Different 4 points are: number 1, Chinese dragon has been found, give expression of Chinese art. Then we have a picture of a painting of a man riding a mule has been found, which shows the similarity with Chinese traders also. Okay, then we have a painting of sailor has been found, which shows that boats must have been used for transportation in that period. Then rock paintings of agricultural work and rock paintings of men and women in a square field are inscribed. Okay, and the above evidences point towards the trade with China through waterways. Okay, so ये basic information आप देख पा रहे होंगे। हमने fact जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको मैक्सिमम कंटेंट आपको मिल जाए। ओके, नाउ दीज आर द मेन कंटेंट्स, ओके, जो आपको लिखने ही है अपने आंसर में, बट द की पॉइंट्स शुड बी सेम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट रिद्धिपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ओके, the question is throw light on the significance of Riddhipur copper plates. In the Riddhipur copper plate, Nal King Bhavdatt Varman has been addressed as Maharaj Nalvansh Prasuta Maheshwar Sri Maharaj Bhavdatt Varma and Mahasenapati Sri Srishtra Raja Vibhavah त्रिपताका ध्वज। ओके,
तो सबसे पहले इस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में क्या सिग्निफिकेंस यहां पर है, इसको आप लिख रहे हो। तो पहला आपने बता दिया कि इट इज रिलेटेड टू विच रूलर, एंड देन आपने उसका बता दिया कि किस टाइटल से उसको यहां पर जाना जाता था, या उसके क्या क्या टाइटल्स थे। सेकंड पॉइंट जो आपका आ रहा है, इसमें आपने उसके वॉर या युद्ध के बारे में आपने बता दिया, भवदत्त वर्मन और किंग नरेंद्र सेन के बीच का। ठीक। नंबर 3 आपने बता दिया कि नल किंग जो भवदत्त वर्मन है उनकी क्वीन कौन थी। ओके, उसके बारे में आपने बताया। और क्वीन के बारे में आपने बताया कि सी हैड ट्रेवल्ड टू प्रयाग विद किंग भवदत्त वर्मन टू मेक अ डोनेशन। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। देन द किंगडम ऑफ भवदत्त वर्मन एक्सटेंडेड फ्रॉम कोरापुट इन उड़ीसा टू नंदीवर्धन इन विदर्भ। ओके, तो ये आपने जो है इसमें इसके एक्सपांशन के बारे में बता दिया। क्लियर। उसकी टेरिटरी के बारे में आपने बता दिया कि कहां से कहां तक उसकी टेरिटरी थी। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो 4 पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं, है ना, टाइटल, वॉर, क्वीन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, इट्स एरिया ऑफ द रूलिंग। बात समझ में आ गई। ये 4 पॉइंट्स में आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है और लिखना है। फिर आता है आपका नंबर 3, हाउ डिड द छिंदक नाग डायनेस्टी एंड। ओके, सो छिंदक नाग डायनेस्टी एंडेड इन 1324, ये आपको बताना है। लास्ट रूलर कौन था, किंग हरिश्चंद्र, ये आपको बताना है। कैसे एंड हो गया, तो किसके साथ फाइट हुई इसकी, काकतीय डायनेस्टी रूलर अन्नमदेव। ओके, ये आपको बताना है ना। यहां पर आप हरिश्चंद्र की डॉटर चमेली देवी के बारे में भी बताएं कि कैसे चमेली देवी ने अन्नमदेव के मैरिज प्रपोजल को जो है रिजेक्ट कर दिया, और उसी के बाद फिर अन्नमदेव ने यहाँ पे अटैक किया, और चमेली देवी फॉट विथ हिज फादर अगेंस्ट दिस अन्नमदेव। ओके, तो ये इस तरीके से आप इसको बताएं। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ पृथ्वीदेव फर्स्ट। आर्किटेक्चरल वर्क को फोकस करते हुए बताना है। सो पृथ्वी देवेश्वर टेम्पल इन तुमाण, ओके, ह्यूज पॉन्ड लाइक द सी इन रतनपुर, बिल्ट चतुष्की का, है ना, चतुष्की का मंडपा। ओके, ही बिल्ट इन द कोर्टयार्ड ऑफ बंकेश्वर टेम्पल विच इज इन तुमाण, वो आपको याद रखना है। देन चैतुरगढ़, ओके सॉरी चित्तौड़गढ़, जिसको हम लाफागढ़ के नाम से जानते हैं, ठीक है, लाफागढ़ को हम कहते हैं छत्तीसगढ़ का चित्तौड़। ओके, was built by पृथ्वीदेव फर्स्ट एंड 3 मेन एंट्रेंस गेट्स, नेमली मेनका, सिंह द्वार और हुंकार द्वार। ठीक, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ पृथ्वीदेव फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव इज व्हाट डू यू नो अबाउट द कुरुशपाल इंस्क्रिप्शन। ओके, Kurushpal inscription is written in Nagari script, Sanskrit language, and total of 39 lines. ये आपने बता दिया। Mentions the praise of Someshwar Dev Pratham, Someshwar Dev first. Okay, and this is a dateless inscription, and it is engraved in the 20th line that Someshwar had subjugated 6,96,000 villages of Kosala. Okay, ये हमको याद रखना है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग 4 मार्क्स क्वेश्चन में। 60 वर्ड्स में हमको आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, व्हाट डू यू नो अबाउट द शैल डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इन छत्तीसगढ़। ओके, डायनेस्टी के एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, और द नेम ऑफ द डायनेस्टी शैल डायनेस्टी। तो जाहिर सी बात है कि आप बताएंगे कि शैल डायनेस्टी का रीजन क्या था, है ना, ये आपका कब से कब तक इसने रूल किया है, यानी कि इसका टाइम पीरियड बताओगे, इसका रीजन बताओगे। देन जो रूलर्स इसमें हुए उनके टाइटल्स क्या क्या थे, फिर मेजर रूलर्स कौन कौन हैं ये आप इसमें बताइएगा। देन आपका इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल का कोई एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है तो वो आप उसमें बता देते हो। और फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है शैल डायनेस्टी का, तो वो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बारे में आप बताइए, और फिर इसका एंड कैसे हुआ वो आप बता दीजिए। क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है। तो जब भी किसी डायनेस्टी के आपका जो है एस्टेब्लिशमेंट की बात करें,
है ना, तो उसमें शुरू से अंत तक आपको बताना है, ठीक है। तो एक एम्पायर में, एक डायनेस्टी में क्या क्या चीजें होती है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक, ये आपको इस तरीके से मेंशन करना होता है, ठीक। Question number 7 we have is describe the achievements of महाशिव तीवरदेव। ओके, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा सा। महाशिव तीवरदेव, son and successor of नंदराज, was a mighty king of this dynasty। ठीक है ना। ओके, ये आप बता देना है। ये सिरपुर के पांडु वंश की बात हो रही है, सिरपुर पांडु डायनेस्टी। ओके, द पीरियड कैन बी कॉल्ड द हेडे ऑफ द पांडु डायनेस्टी। महाशिव तीवरदेव का जो टाइम है ना, एंड ही एक्सपांडेड हिज किंगडम टू कोसला, उत्कल एंड अदर स्टेट्स, एज्यूम द टाइटल ऑफ सकल कोसलाधिपति। क्लियर। देन 3 कॉपर प्लेट्स। ओके, जाहिर सी बात है इसमें आपको कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बारे में बताना होगा, कहां से मिला है, राजीम बालोद से, है ना, जो इसके वेलर के बारे में बताते हैं। तीवरदेव हैड गरुड़ा एनग्रेव्ड इन हिज रॉयल सील। Copper plates contain details of donating villages to Brahmins and he was a follower of Vaishnavism. Okay, ये complete information हमारे पास आती है जो आपको बताना है। Then आपका question number 8. Question number 8 is on the basis of evidence, can it be said that Chhattisgarh belongs to the Buddhist period? Okay, ये हमारा question है। So बुद्धिस्ट पीरियड को कंसिडर जो है आपका रहा है, छत्तीसगढ़ बुद्धिस्ट पीरियड को बिलोंग करता है, ये बताना है। तो जाहिर सी बात है आपको ये बताना है कि बुद्धिज्म रिलेटेड क्या क्या सोर्सेस आपकी जो है छत्तीसगढ़ से रिलेट हो रही हैं। ओके, यही आपका क्वेश्चन है। सो द बुद्धिस्ट पीरियड कंसिडर टू बी रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ बिकॉज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंसेस वी हैव बीन फाउंड। नंबर 1 आप बता दीजिए अवदान शतक के बारे में, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है अराइवल ऑफ गौतम बुद्धा के बारे में कि यहाँ पर आए, 3 मंथ इन्होंने स्पेंड किया सिरपुर में। ओके, ये आप इसमें बता दीजिए। देन आप बता देंगे सी यू की के बारे में, सी यू की विच इज रिटन बाय द चाइनीज ट्रेवलर आपका वेनसा। ओके, सो दिस इज अ ट्रेवलॉग ऑफ चाइनीज ट्रेवलर व्हेन ही विजिटेड दिस इंडिया between 629 to 645 AD. He visited Chhattisgarh also in 639 AD. He came in Chhattisgarh in the reign of Mahashivagupta Balarjun. Okay, so CU की में उन्होंने जो है मेंशन किया है छत्तीसगढ़ के बारे में भी। ओके, तो ये एक सोर्स आपको मिलता है। देन बुद्धिस्ट विहार की बात कर लेते हैं, बुद्धिस्ट विहार के बारे में बता दीजिएगा। ओके, आनंद प्रभु वो केम हियर इन द 6th century AD, उसने यहाँ पे विहार बनाए हैं, आनंद प्रभु कुटी विहार और स्वास्तिक विहार, तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। देन क्वाइंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो द क्वाइंस वी हैव रिसीव्ड टोटल ऑफ 253 पंच मार्क्ड क्वाइंस ऑफ 6th century BC, और 6th century BC मतलब कब का, वो बुद्धिस्ट पीरियड का है, ठीक है। सो हैव बीन फाउंड फ्रॉम द तारापुर, ठठारी, बालाघाट प्लेसेस। ओके, तो ये आप इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाखा बाटा प्रथा का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द लाखा बाटा सिस्टम। ओके, सो इसके बारे में आप बता दें, कलचुरियों के टाइम का एक प्रैक्टिस है, बोला जाए तो सिस्टम है ना। अ लैंड एक्सचेंज प्रैक्टिस प्रेवलेंट इन कलचुरी पीरियड। ओके, सो स्टिल प्रेवलेंट इन 1864 to 65. It can be understood on the basis of the following points. Number 1 is distribution of land. ओके, है ना, इसमें हम फर्टाइल लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ओके, ताकि सभी फार्मर्स को जो है इक्वल और सही रिसोर्स मिल सके, गुड एग्रीकल्चरल लैंड उसको मिल सके। नंबर 2 इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मालगुजार, ठीक है, मालगुजार की हेल्प से जो है यहाँ पर हम प्रोडक्शन को क्या करते थे, जो है एनकरेज करते थे। ओके, देन फेयर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता था इससे। ऑक्यूपेशन ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल, एक्सटेंशंस। ओके, ये चीजें आप अपना जो है बुलेट पॉइंट बनाओ और इस तरीके से आंसर कर दो, बढ़िया नंबर आपको मिलेंगे, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ स्टोन एज इन छत्तीसगढ़, मेंशन द स्टोन एज साइट्स। ओके,
तो सिंपल है, आपका स्टोन एज के क्लासिफिकेशन की बात हो रही है तो 4 हिस्सों में आप बांट देते हो स्टोन एज को, है ना, प्री या अर्ली स्टोन एज, देन वी हैव, और इसको हम लोग पैलियोलिथिक एज ही बोलते हैं, है ना। देन आपका आता है मेसोलिथिक एज, देन आपका पोस्ट पैलियोलिथिक एज, एंड देन आपका लास्ट आता है क्या, वो है आपका नियोलिथिक एज। ठीक है, तो ये 4 हिस्सों में आपने बांट देना है। और उसके बाद फिर जो है आपका स्टोन एज साइट्स के बारे में भी बोल रहा है, तो क्या करिए कि इसको आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप ऐसा बना सकते हैं 2 कॉलम, लाइक ऐसा, तो इसमें डिवीजन कर दीजिए और इस तरफ आप इसमें साइड्स लिख दीजिए लाइक दिस। ओके, 2 कॉलम बना के डिवीजन में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा और चौथा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। क्लियर, तो यहां पर आपका जो है डिवीजन आ जाएगा, ठीक, अर्ली स्टोन एज या प्री पैलियोलिथिक एज, है ना, देन वी हैव मेसोलिथिक एज, देन पोस्ट पैलियोलिथिक एज, एंड देन नियोलिथिक एज, और साइट्स के नाम आगे लिख दो। तो इंडिविजुअली वो कैटेगराइज भी हो जाएगा कि कौन कौन से स्टोन एज के कौन कौन से साइट्स हैं, और आप साइट्स के नाम भी दे दोगे। ठीक, इससे स्पेस भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा, तो ये और बेहतर हो जाएगा। ये हमने पूरा कंटेंट एक साथ दे दिया है पैराग्राफ वाइज में। ऐसा भी लिखोगे नंबर मिलेगा, लेकिन ऐसा लिखने से क्या है कि प्रेजेंटेशन दूसरों से थोड़ा सा अलग हो जाएगा और चीजें एकदम बिल्कुल सामने नजर आ जाएंगी चेक करने वाले को। ठीक है, तो वो इजीली और जल्दी जो है आपको अच्छे नंबर दे सकता है, उसको खुश करना है आपको बस, है कि नहीं। चलिए भाई, अब 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं, यानी कि 100 मार्क्स में क्या क्या, सॉरी 100 वर्ड्स में लिखने के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, ये है आपका ब्रीफली थ्रो लाइट ऑन पांडुवंशी आर्किटेक्चर। ओके, ड्यूरिंग द राइन ऑफ पांडुवंशी रूलर्स आर्किटेक्चर इन छत्तीसगढ़ touched its peak heights. Along with religious and cultural development, valuable architectural heritage was also established during this period. Okay, तो क्या क्या है, सबसे पहले देखें एक्सकेवेशन वर्क। पांडुवंशी पीरियड्स के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपका 1999 से 2011 के बीच आपके जो है खोजे गए हैं, एक्सकेवेशन इसका हुआ है, और 40 और आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं अब तक खोदे जा चुके हैं, एक्सकेवेटेड, विच इंक्लूड 22 शिवा टेम्पल्स, 4 विष्णु टेम्पल्स, 10 बुद्धिस्ट विहार्स एंड 3 जैन विहार्स। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर के मामले में ये कितना रिच हुआ करता था। ओके, देन इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में आ जाओ, तो आप बता दीजिए कौन कौन से विहार हैं, है ना। देन आपका पद्म पाणी बुद्धिस्ट विहार है, ठीक है, भिक्षुणी विहार है, जैन विहार है, देन लक्ष्मण टेम्पल, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन राम टेम्पल, सुरंग टीला टेम्पल, त्रिदेव टेम्पल। सो दिस आर द एग्जांपल्स यू कैन राइट इन योर आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गए 2 पॉइंट। उसके बाद फिर आपका जो है डाइवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर, इसमें अभी आप अलग एक पॉइंट बना सकते हो, क्योंकि ये आपका शैविज्म, विष्णुइज्म, है ना, वैष्णविज्म और बुद्धिज्म, ये सभी के टेम्पल्स आपको यहाँ पे मिले हैं। क्वाइंस एंड सील्स के बारे में बता दीजिए। ठीक, पांडुवंशी जो क्वाइंस है उसमें सिंबल के तौर पे बुल यूज हुआ है, एंड ट्राइडेंट इंडिकेटिंग द शैविज्म ऑफ द पीरियड। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज मेक एन असेसमेंट अबाउट शाक्त धर्म मेंशन इन कल्चुरी पीरियड। ठीक है, शाक्त धर्म मतलब कि द फॉलोवर ऑफ माता शक्ति, ठीक है ना, तो देवी को मानने वाले। तो क्या क्या हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो कल्चुरियों के टाइम पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ये 2 लाइन का आपने इंट्रो बना दिया, उसके बाद फिर आप लिख लीजिए क्या क्या है। द शिवरी नारायण इंस्क्रिप्शन नंबर 919, इसमें आपका दुर्गा टेम्पल बाय विकर्ण देव इसका मेंशन किया गया है ना, जो कि आपको वर्शिप ऑफ शक्ति शाक्त रिलीजन ये इंडिकेट कर रहा है। देन इंस्क्रिप्शन ऑफ रत्नदेव थर्ड, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल ऑफ गॉडेस दुर्गा बाय सामंत गंगाधर, ये आपका यहाँ पर आता है। सिंबल ऑफ रिवरेंस फॉर द गॉडेस एंड वर्शिप ऑफ शक्ति। देन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आता है पुजारी पाली इंस्क्रिप्शन, है ना, तो पुजारी पाली इंस्क्रिप्शन का बारे में आप मेंशन कर दो, उसमें आपका दुर्गा टेम्पल के बारे में मेंशन हो जाता है।
ठीक। देन तांत्रिक ट्रेडिशन के बारे में भी आप लिख सकते हैं, जैसे द बिलाईगढ़ कॉपर प्लेट ऑफ पृथ्वीदेव सेकंड मेंशंस शाकंभरी विद्या एंड तांत्रिक विद्यास विच कन्फर्म्स द आपका है ना तंत्रोक्ता ट्रेडिशन दैट बिलीव्ड इन शाक्त रिलीजन। क्लियर। फिर आइडोल्स एंड स्टेच्यूज के बारे में बता दीजिए। सप्तमात्रिका टीला है ना, महिषासुर मर्दिनी आपका है, चामुंडा आउटसाइड द पाली। ओके। एक वीरा देवी गंगाधर ने जो टेम्पल बनवाया, एक वीरा या लक्ष्मी देवी टेम्पल, वो आप याद रखिए। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ गॉडेस वर्शिप। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ गॉडेस वर्शिप ये पूरा आपको मिलेगा। मेजर गॉडेस में महामाया रतनपुर हो गया, बमलेश्वरी देवी टेम्पल डोंगरगढ़, दंतेश्वरी देवी टेम्पल दंतेवाड़ा वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ शाक्त रिलीजन। ओके। देन रिलीजियस प्योरिटी एंड आपका सैंक्टिटी एंड देन आपका तांत्रिक स्कॉलर्स। ठीक है, ये इस तरीके से आपका जो है 8 मार्क्स कम से कम तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसको एक एक 2-2 लाइन में क्या कर दो, इलेबोरेट कर दो। ठीक है। Okay, now the question number 13. Question number 13 is throw light in brief on the wars fought between the Vakataka and Nal dynasties for the expansion of their empire. ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को पकड़ना पड़ेगा। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में सबसे पहले रिद्धिपुर कॉपर प्लेट अमरावती इंस्क्रिप्शन वो आप डाल दीजिए। फिर से बता दीजिए कि कौन कौन से राजा के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, कौन जीता कौन हारा, ओके, और किसने कहां पर क्या किया, कैप्चर किया। ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा केसरी बेड़ा इंस्क्रिप्शन आ जाएगा, वो आप बता देंगे, है ना। देन उसके बाद फिर आपका आ जाएगा क्या, पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो ये 3 चीजों को ही इलेबोरेट करना है। ठीक, किसके बीच क्या लड़ाई हुई, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपने बिल्कुल लिखा ही होगा। ठीक। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14, छिंदक नागवंश शासन के दौरान घटित प्रमुख घटनाओं का वर्णन करें। ओके। डिस्क्राइब द मेजर इवेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ छिंदक नाग डायनेस्टी। तो मेजर इवेंट्स बोला है, कोई स्पेसिफाई तो नहीं किया है, तो सब कुछ आपको लिखना होगा। क्लियर है छिंदक नाग डायनेस्टी के बारे में। तो पहले शुरुआत में बता दो कि कहाँ इन्होंने रूल किया। ठीक है ना। द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी प्रमोटेड कल्चरल पॉलिटिकल रिलीजियस एक्टिविटीज इन बस्तर एंड सराउंडिंग एरियाज। ये आप बता दो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में जाकर के, है ना। फिर आपका आता है कोरोनेशन ऑफ नृपति भूषण, ये आपका 1023 AD में हुआ। ठीक, ये आप बता देंगे। उसके बाद फिर आपका रायन ऑफ जगदेव भूषण, धारावर्ष, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, है ना, इसके टेन्योर के साथ आपको लिखना है, उसके टाइम पर क्या क्या हुआ वो आप उसमें लिखिएगा। ठीक। देन स्ट्रगल ऑफ मधुरांतक देव, विक्टोरियस कैंपेन ऑफ सोमेश्वर देव फर्स्ट, द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। द रायन ऑफ कन्नड़ देव एंड रायन ऑफ जयसिंह देव। सो मेन जो भी रूलर्स हैं उसको आप इसमें लिखिएगा, क्योंकि कंप्लीट को स्पेसिफाई नहीं किया है क्वेश्चन में। सभी के बारे में लिखिए और सभी ने कुछ कुछ क्या क्या किया है वो पूरा आप बता दीजिए। ठीक है। तो रायन ऑफ सोमेश्वर देव सेकेंड, देन नरसिम्हा देव, देन कन्हड़ देव 2, हरिश्चंद्र देव 2। ठीक है, हरिश्चंद्र देव ये जो है आपके यहीं पर लास्ट रूलर इसके हो जाएंगे और इसके बाद कहानी इनकी खत्म है। ठीक है। इवेल्युएट द रायन ऑफ प्रसन्न मात्र। ठीक है, सरबपुरी डायनेस्टी के राजा प्रसन्न मात्र, यहाँ पर भी आपने बुलेट पॉइंट्स बना दिए हैं। राजा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो उसके रिलेशनशिप और सक्सेशन के बारे में बता दो। गोल्ड क्वाइंस, देन आपका अर्बन डेवलपमेंट, इसने क्या किया है। ठीक, मार्किंग ऑन क्वाइंस, इसके बारे में बताइए क्या क्या मिला है और उससे क्या डिपिक्ट होता है इस टाइम पीरियड के बारे में। ठीक, कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे लेकर के आएंगे। ठीक, ये इसके बारे में आप बता दीजिए, है ना, कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसी रही थी उस समय पर। ओके। देन आपका टेन्योर हो जाएगा। अजय मिश्रा शास्त्री कंसीडर्ड द रायन ऑफ दिस डायनेस्टी ऑफ प्रसन्न मात्र, टेन्योर 525 to 550 AD। वहीं कुछ लोग और हैं, डॉक्टर PL मिश्रा, उनका कहना है कि ये 515 से 535 AD के बीच में रहा है। ठीक है, तो ये उसका रायन भी आप इसमें बता देते हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 15 मार्क्स क्वेश्चन में। 15 मार्क्स क्वेश्चन में नंबर 1 है थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ सोमवंश ऑफ कलिंगा। ओके, तो सोमवंश ऑफ कलिंगा के बारे में पूछा, 15 मार्क्स में पूछा है। और कितने में पूछा है, 15 मार्क्स में पूछा है। तो कंप्लीट जितने भी मेन रूलर्स हैं उन सभी के नाम आप लिखोगे। ओके, है ना।
किंग शिवगुप्त हो गया, पहले शुरुआत में टाइटल बता देना, कहाँ पे रूल किए वो बता देना, ठीक है। किंग शिवगुप्त के बारे में सबसे पहले बता दिए, 3 लाइन लिख दिए। महाभवगुप्त वन जन्मेजय के बारे में 880 से 920 के बीच में ये रहा है, ठीक है, तो ये इसको लिख दीजिएगा। फिर महाशिवगुप्त वन ययाति हो गया, ओके। तो ऐसे करके कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन आपको देना है, ओके, क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन था ये, ओके। महाभवगुप्त 3, नहुष, इंद्ररथ, अदर रूलर्स, ये सब इसमें आप बताओ, ठीक। अब फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, ओके। मेक एन असेसमेंट अबाउट द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ कलचुरी, ठीक। तो कलचुरियों के बारे में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें आप बताइए क्या क्या इसमें हुआ करता था। जैसे आपका सिस्टम ऑफ पंचकुल, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए पंचकुल था, ये आपको बिल्कुल बताना ही होगा। मेजर ऑफिशियल्स को क्या क्या बोलते थे वो सब आपको बताना है। देन सिटी एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वही अपना ग्राम भौगोलिक और पूर्व प्रधान जो हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, वो इसमें आ जाएगा। देन आपका जस्टिस सिस्टम एंड फाइन्स, ठीक है, जस्टिस सिस्टम एंड फाइन्स, ये आपका आप लिख दीजिए। डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम, डिक्लाइन एंड डिसकंटेंट, ठीक। इस तरीके से यहां पर जो है इसके आंसर बनेंगे। क्लियर? तो पीडीएफ फाइल आपके पास रहेगी, जस्ट रीड इट वंस। और ये नहीं कि उसी को छाप देना है, आप उसमें से सेपरेट आप अपने ओन वर्ड्स में लिखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन यहाँ से ले लीजिए, की पॉइंट्स भी पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ने के बाद फिर 4 से 5 बार उसको लिखना होता है, ठीक है ना, तो वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है? ओके, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इंग्लिश मीडियम के और छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट्स को लेकर के फिर से आप सभी के सामने मैं आऊँगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।